Assalamu alaikum everyone. My name is Amir Saeed and I'm representing My Hujjaj. This is Hajj pre-departure webinar. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है और हर तारीफ उसी के लिए है और वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. So by now you must have received your Hajj visa. You have confirmed with your airline about your departure. You got vaccinated. You have downloaded and registered the Nusuk app, and you have your luggage and packing. And you should know about accommodation and the transportation. And you should be aware about the departure and the arrival procedure. And the most important, you are ready to go spiritually and physically. Regarding the Nusuk app, so I have already shared the link, and I hope everyone would be able to download and register to the Nusuk app. Why you need a Nusuk app? It is very important because basically, first of all, this is your digital permit. Means if you do not have a physical card, you may show your Hajj permit via this app. Second, if you need to book Rawada, or if you need to check anything about Haram, Makkah, or Masjid al-Nabawi, all the schedules are there. Top of that, you might also buy a SIM, book a train, or get a knowledge about your Hajj journey, such as there are few sections in this application which will guide you about hadith, Quranic verses, Quranic translations, and more than what you think. Let's move to the next section. Your packing. Pack light to travel with ease during Hajj. It is your own responsibility to take care of your luggage while you're moving from airport to the hotels. As you can see how the baggages are collected in front of the moving pick, right? And on the left side, you can see I took this picture in 2023. It was a Malaysian group, and the baggage is all around there. It is your responsibility to make sure your luggage reach to your room. If you do not pay attention while you are departing from the bus, then most probably you will never ever get your luggage because there is no tracking there unless you have a Apple tag inside your baggages or there's another tracking device in your baggages. So this is your own responsibility. Regarding your transportation, the transportation will be provided from airport to your hotel. Either you are going to Makkah or Medina. And the transportation will be provided from hotel, Makkah, Medina to the Azizia Hotel, and Azizia Hotel to Mina Camp, and Mina Camp to the Arafah, and Arafah Camp to the Mudalfa ground. And the last transportation will be provided from Azizia Hotel to the Medina Hotel. For Tawaful Ziyarah, Tawaful Wida, or returning to your home back to the airport, you are responsible for your own transportation. Although it could be arranged, but you need to pay from your own pocket. Anyone who took 17 days, 22 days, 26 days, or 13 days packages, they will go to the clock tower. Anyone who took 13 days packages will land to Medina first, and they will go to the Jayden Medina Hotel. Rest of the people, those either going after Hajj or going before Hajj, they will go to the Nusuk Al-Hijra Hotel, Medina. During your Hajj days, the most important place to go in and out from Mina and to Mina, it's your it's your Zokul Khayal Hotel. This Zokul Khayal Hotel for everyone, either you took 17 days package or 13 days package, going Medina first or going Medina after the Hajj, everyone should stay in this hotel. And it is very convenient in regards to go to the Mina or coming from Mina after Jamara. Here's a brief map about the Mina. As you can see, the camps are marked. So most probably, you all will get a camp 7A or 7-1. So this one is the plot number 1, actually. This is Mina plot number 1, and they divided the plot further, like 1A, 1-3, 1-5, 1-7, accordingly. So most probably, you will get plot number 1, camp number 7. As you also can see, the map is showing the Jamara. So this is the Jamara. As you can see, the map also showing your Azizia Hotel. So this is the Azizia Hotel.
and the Mina tunnel to go into the Mina. So if you see this red line, so from Jamra to your hotel and from your hotel to the Mina, this is the route you are going to get. Unfortunately, Maktab B is not for you people, because it has been eliminated now. Once you reach to your hotel, and most probably most of you are reaching early than your packages start, so you all might be going to the, if you are going to Makkah first, then you are going to the Azizia hotel. What you need to do, so most probably you might need a currency exchange, or looking for a food restaurant, or looking for the sim for your phones, or the taxi to go to Kaaba to perform the Umrah. Very simple. All of you have devices with internet connections. So if you do not have a SIM at that moment, go to the hotel, get the Wi-Fi password, and use the internet. Very simple. Just go to the google.com, as I'm showing here. Let me know if you see the Google page. Yeah. So hotel is Zokul Khayal. I just typed Zokul Khayal. I go to the map. Most of you already aware about this, but for the people those are not aware about this exercise, so I am showing this. So once you click the map, you have the map. This is your hotel, right? Let's assume you need to find a restaurant. So for restaurant, you don't have to do any efforts. Here you click the restaurant, you will get the restaurant, right? Let's assume if I click the restaurant here, you see how many restaurants are here. So if I just tap here, and you can see the picture, the name, what time is open, what time is closed, and how far by walking distance, right? Let's assume if I tap here, you'll get the same information from another hotel. So it's up to you which hotel you go to and have a lunch or dinner or whatever. This is only once you go before your package. But once your package is started, all food will be served at the hotel. So you don't have to go out unless you want to, but you don't have to go out and buy a food for yourself, because it's all included in your packages. Okay. Let's assume you need to exchange some currency. So if I write currency exchange, you can see few spots are available here. So this one is saying walking 9 minutes, but if you see, Google Map will take you from there to there. So in Saudi, you're allowed to cross the roads from anywhere, unless it's a main highway. So you can cross the road from here and go to this currency exchange. What time is open, what time is closed is all mentioned here. If you found another location, go find another location. It might be a little far, but it depends if it's open or closed, right? So this time it is closed already. Okay, I'm getting a request for the Urdu. Okay, आपके अजीजिया होटल से अगर आपने करेंसी एक्सचेंज करने जाना है तो गूगल मैप के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं लोकेशंस और वहां से जा सकते हैं. लेट्स अज्यूम अगर आपको कुछ और सर्च करना है, सेल फोन, राइट? इफ आई टाइप सेल फोन, तो देयर आर लॉट ऑफ लोकेशंस. ओके, बहुत सारी लोकेशन मौजूद हैं, आप किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं. सो अजीजिया होटल के सामने ये है. व्हाई आई एम शोइंग द अजीजिया होटल? बिकॉज अगर आप मदीना जा रहे हैं और मक्का जा रहे हैं तो मदीना और मक्का के होटल तो ऑलरेडी विद इन दी शॉप्स के दरमियान में है, तो वहां से आपको कोई इशू नहीं आएगा. लेट्स अज्यूम अगर मैं क्लॉक टावर सर्च करता हूं, मैप, okay, and let me drop this piece here. मैंने क्लॉक टावर के अंदर ड्रॉप कर दिया, खैर कहीं और ड्रॉप हो गया. मैप अगेन, तो
क्लॉक टावर और मक्का टावर, ये क्लॉक टावर है और ये मक्का टावर है। इसके दरमियान में जो स्ट्रीट है, तमाम सेल फोन्स वाले, फूड और बाकी जितनी शॉप्स हैं वो आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर आप ओके, हियर यू गो, आपको सारी शॉप्स नजर आ रही हैं। ये मक्का टावर है और ये क्लॉक टावर है। तो जो लोग मक्का जा रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जैन, STC, ये सब मोबाइल की शॉप्स हैं, ऑफिशियल मोबाइल्स की शॉप्स हैं। इसके अलावा इस तरह से बूथ लगे हुए होते हैं, इन बूथ से भी आप बाय कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बूथ लगा हुआ है एक, और ये सब सेल फोन्स सिम्स सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप क्लॉक टावर जा रहे हैं या मदीना जा रहे हैं, वहां भी इसी तरह से बहुत सारी शॉप्स मौजूद होती हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। इस सेक्शन में किसी को कोई क्वेश्चन करना? जी, गो अहेड रोज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम वहां से सेल फोन बाय करते हैं तो वो कनाडा में वर्क करेगा इफ इट इज अनलॉक? और आपने सेल फोन नहीं बाय करना है, आपने सिर्फ सिम बाय करनी है, राइट? सेल फोन तो आप यहाँ से लेके जाएंगे। ओके, ओके, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको फैमिली बैक होम फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहना है तो आप मोस्टली हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। सऊदीया में व्हाट्सएप नहीं चलता अनलेस आपके पास VPN मौजूद है, VPN फैसिलिटी मौजूद। अगर VPN की फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो फिर एक सॉफ्टवेयर है बॉटम के नाम से, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिए, वो सऊदीया में चलता है। कोई और क्वेश्चन किसी का इस सेक्शन के हवाले से? इवन कनाडा में भी नहीं चलेगा? जैसे व्हाट्सएप, जैसे अपने बच्चों से बात करनी हो तो? जी, ठीक है, सऊदीया में व्हाट्सएप की रिस्ट्रिक्शंस हैं। मोस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप कॉलिंग की रिस्ट्रिक्शन है। व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजिंग हो सकती है, व्हाट्सएप वॉइस मैसेजिंग हो सकती है, पर व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं चलेगी। ओके, गॉट इट। ठीक है, जब आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं तो वो नहीं होती है। लाइक दुबई। जी, एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू। जी, किसी और के पास कोई सवाल है इस सेक्शन के हवाले से? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, गेट्स ऑफ काबा। तो जो मैप आप देख रहे हैं इसमें हरम जाने के गेट्स शो हो रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बाबुल मलिक अब्दुल अजीज। लेट मी शो यू द मैप। लेट्स एज्यूम कि आप क्लॉक टावर में रह रहे हैं या अजीजिया से काबा आ रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप क्लॉक टावर में रह रहे हैं तो आप क्लॉक टावर के अंदर ही मौजूद होंगे, यहीं से आप निकल के इस रोड से बाहर यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप अजीजिया से भी आ रहे हैं तो पार्किंग क्लॉक टावर के नीचे ही है, तो वहां से होते हुए आप ये एस्केलेटर्स हैं, इस यहाँ से इस बेसिकली इस जगह आ जाएंगे। ठीक है, सो किंग अब्दुल अजीज गेट इज द मेन गेट उम्रे पे जाने के लोगों के लिए। जो लोग उम्रा पे जा रहे हैं, एहराम में हैं, वो इस गेट से दाखिल होंगे। ठीक है, लेट्स एज्यूम, ओके, एहराम में इस गेट से आप दाखिल होंगे, आप मताफ में आएंगे। ये पार्ट मताफ कहलाता है, जो काबा के अराउंड का पार्ट होता है, और यहीं पे हम तवाफ करते हैं। ठीक है, तवाफ खत्म करने के बाद यहाँ से रास्ते जा रहे होते हैं सफ़ा मरवा के लिए, तो उस पर लिखा हुआ होगा सफ़ा मरवा, तो वहां से आप चले जाएंगे। ये जो दो आपको गुंबद नजर आ रहे हैं, डोम्स, ये सफा है और ये मरवा है। ठीक है, सही जब आप उम्रा कर रहे हैं आप तवाफ करेंगे, तवाफ करने के बाद सही करने के लिए आप सफा मरवा के चक्कर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप सफा से अपना पहला चक्कर शुरू करते हैं और लास्ट चक्कर आपका जो है मरवा पे खत्म होता है। और इसके बाद यहाँ से निकलने का तरीका ये है कि यहाँ से आप राइट साइड पे गेट है, इस गेट से निकल के वापस आप इस जगह पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप वॉक बैक करते हुए, दो तरीके आपके पास, एक लॉन्ग है लेफ्ट पे जाने का, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि लेफ्ट पे ना जाइए, आप वहां से निकल के राइट साइड पे आइए, और राइट साइड पे आते हुए आप जब आएंगे तो वापस आप निकल के फ्रंट ऑफ द क्लॉक टावर आ जाएंगे।
क्योंकि क्लॉक टावर आपको हर जगह से नजर आ रहा होगा, तो आपके लिए बहुत इजी होगा इस लैंडमार्क को मार्क करने के लिए। तो जब भी आप जाएं, ग्रुप की शक्ल में जाएं, अकेले जाएं, पहले ताज़ाबाद हम सब एक्साइटेड होंगे, हम सब जाएंगे, हम जल्दी से अंदर चले जाएं और उम्रा परफॉर्म करें या काबा को देखें या दुआएं मांगें। बट होल्ड ऑन, उससे पहले जब आप काबा के सहन में चले जाएं, आउटर सहन में, तो वहां पे खड़े होके कुछ टाइम लगाइए अपनी फैमिली के साथ, अपने ग्रुप के साथ, और कुछ चीजों को मार्क कीजिए कि जी अगर हम लॉस्ट हो जाए, अगर हम एक दूसरे से बिछड़ जाए, तो हमें यहाँ वापस आना है, या जब तवाफ खत्म हो जाए, सही खत्म हो जाए, तो हमें इस टाइम पे यहाँ आना है, और इस टाइम तक हमें वेट करना है एक दूसरे का। अगर नहीं कोई नहीं आया तो फोन पे कांटेक्ट करेंगे, फोन पे भी कांटेक्ट नहीं हो रहा तो फिर आप डिसाइड कर लेंगे अगर आपको वापस अजीजिया वापस आना है तो आप अजीजिया वापस आ जाइए अकेले, या अगर वेट ही करना है वहां पे तो कोई जगह डिसाइड कर लीजिए। द बेस्ट लोकेशन क्लॉक टावर के अंदर फूड कोर्ट है, द बेस्ट लोकेशन, आप फूड कोर्ट में जाके बैठ जाइए और बाकी लोगों को भी बता दीजिए कि जब आपका तवाफ खत्म हो जाए, सही खत्म हो जाए या नमाज खत्म हो जाए, तो वहां फूड कोर्ट में आके मिल लें। ठीक है, द बेस्ट लोकेशन, द इजिएस्ट लोकेशन। तो जाने से पहले, अंदर जाने से पहले, जब आप अंदर चले जाएंगे तो आप यू आर टू मच एक्साइटेड, आप सब कुछ भूल जाएंगे, आप सिर्फ अपने काम में लग जाएंगे, और फिर आपको ये याद नहीं रहेगा कि हम किस गेट से वापस निकले थे और किस गेट पे जाके हमें मिलना था, और ये तो हमने पहले डिसाइड ही नहीं किया है। तो इसलिए ये तमाम बातें आपने पहले से डिसाइड करनी है और लैंडमार्क को मार्क करना है। क्लॉक टावर इज द बेस्ट लैंडमार्क और फूड कोर्ट उसका बेस्ट है, इस जगह मिलना। तो आप, ये किंग अब्दुल अजीज गेट है, उम्रे के लिए जा रहे हैं, इसी गेट से अंदर जाएंगे, मताफ में उतरेंगे, मताफ में उतरने के बाद आप तवाफ करेंगे, तवाफ करने के बाद आप सही करेंगे, सही करने के बाद आप राइट साइड पे गेट है, राइट साइड पे आप आएंगे, फिर राइट पे टर्न करेंगे, वापस क्लॉक टावर की तरफ मूव पैदल चलना शुरू कर देंगे, और ये रास्ता वापस आ रहा है यहाँ से। ये बेसिकली तो ब्रिज नजर आ रहा है आपको, ब्रिज के नीचे से रास्ता आ रहा है, और ब्रिज जो है, ब्रिज के इस नीचे से वापस आप यहाँ से आके और सामने क्लॉक टावर आ जाएगा। ठीक है, अब जो लोग तवाफ करने नहीं जा रहे, वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए हरम में जाने जाते हैं, अगर आप एहराम में नहीं है, औरतों के लिए कोई मुआवनत नहीं है, लेकिन मर्दों के लिए अगर आप 2 शीट्स में नहीं है, व्हाइट 2 शीट्स में नहीं है, तो वो आपको इस गेट से अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम आप सिर्फ नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए किंग फहद गेट से अंदर जा सकते हैं। ये पूरी मॉस्क है, यहाँ पे बैठने का इंतजाम है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, जितना टाइम स्पेंड करना चाहे कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। इसके अलावा ये ब्रिज जा रहा है, ये भी क्लॉक टावर के सामने से राइट साइड पे आप आएंगे तो ये ब्रिज जा रहा है, ये अजियात का ब्रिज कहलाता है, अजियात ब्रिज कहलाता है। इस ब्रिज के ऊपर आप चढ़ के आप मस्जिद में जा सकते हैं, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप रूफ पे भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये रूफ है, यहाँ से भी कुछ लोग तवाफ करते हैं, नफली तवाफ भी करते हैं, और उनको अगर अंदर जाने की जगह नहीं मिलती तो वैसे भी उम्रा परफॉर्म करने के लिए यहाँ से भी तवाफ करते हैं, बट ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, इट्स डिपेंड अपॉन कि आप किस टाइम पे पहुंच रहे हैं, वहां पे आप कितने लोगों के साथ पहुंच रहे हैं, किसके साथ क्या कन्वीनियंट है। ओके, एक और चीज, अगर आप किसी को व्हील चेयर पे लेके जाना चाहते हैं तो आप किंग अब्दुल अजीज गेट से अंदर नहीं जा सकते। क्लियर? उसके लिए आपने या तो फिर अजियात ब्रिज के ऊपर से जाना है या अजियात ब्रिज के नीचे, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन शो यू और नॉट, बट अजियात ब्रिज के नीचे एलिवेटर्स हैं। इन एलिवेटर से आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या रूफ पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं व्हील चेयर लेके तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन मौजूद है, आप मताफ में नहीं जा सकते। बाकी ये न्यू कंस्ट्रक्शन है हरम की, अगर आप विजिट करना चाहें आप कर सकते हैं, ऐसा आपको जरूरत नहीं है यहाँ जाने की, क्योंकि ये टोटली, ये भी एक मस्जिद का हिस्सा है, और ये पूरा, ये जो यहाँ से आपको शो हो रहा है ये भी मस्जिद का हिस्सा है। तो अगर आपको यहाँ जगह नहीं मिलती और अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए बैठना चाहते हैं तो मोस्टली ये जगह खाली होती है, आप यहाँ जाके स्टे कर सकते हैं। ओके, कोई सवाल?
इस सेक्शन में। मस्जिद नबवी, अगर आप पहले मदीना जा रहे हैं तो आप पहले मस्जिद नबवी चले जाएंगे, अगर आप बाद में मदीना जा रहे हैं तो आप बाद में जाएंगे। मस्जिद नबवी में एक तो आपने नमाज पढ़नी है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, रोजा रसूल है और रियाजुल जन्ना। रोजा रसूल के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन रियाजुल जन्ना जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जो आप नुसुक एप्लीकेशन से बुक कराएंगे। रवादा के नाम से एक सेक्शन है, रवादा में जाके डेट्स और टाइम के हिसाब से, जिस डेट और टाइम के हिसाब से आप वहाँ पहुंच रहे हैं, उस डेट और टाइम के हिसाब से आप बुकिंग कराएंगे। ग्रुप बुकिंग भी होगी, लेकिन आप अगर खुद से भी बुक कराना चाहते हैं तो खुद से भी बुक करा सकते हैं, और ग्रुप के साथ भी जाना जा सकते हैं तो ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस को अवेल करना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे गेट्स हैं मस्जिद नबवी के, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी गेट से अंदर दाखिल हो सकते हैं। जो क्लोजेस्ट गेट है आपके होटल से, आप वो यूज कीजिए। उसके बाद जाके वुमेन सेक्शन है तो वुमेन सेक्शन में चले जाएं, मेल सेक्शन है तो उसमें मेल सेक्शन में चले जाइए। अब मस्जिद नबवी में आप चले गए, अब आपने जाके लेट्स अज्यूम कि आपने रोजा रसूल पे जाना है, तो आप कहाँ से रोजा रसूल पे जाएंगे? तो जो दो होटल हमारे पास मौजूद हैं, एक नुसुक अल हिजरा है, एक जेडैन है, ठीक है, दोनों बहुत क्लोज हैं। आप जब दोनों ही फ्रंट ऑफ द रोजा रसूल के फ्रंट में। रोजा रसूल, ये जो ग्रीन गुम्बद आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर है, और दोनों फ्रंट ऑफ द रोजा रसूल पे, यानी कि एक यहाँ पे है और एक होटल यहाँ पे है। जब आप मस्जिद नबवी में आ गए, ये आप बाबुल सलाम देख रहे हैं। बाबुल सलाम वो गेट है जहां से आप रोजा रसूल जा सकते हैं। आप मस्जिद नबवी में आएंगे, बेसिकली आप डायरेक्ट बाबुल सलाम पे राइट टर्न लेके नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अगर मैं दिखा सकूं तो उन्होंने रास्ता बनाया हुआ होता है और आपने उन्हीं को फॉलो करना। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए, इन्हीं बैरियर्स से होते हुए आपको घूम घुमा के फिर मस्जिद बाबुल सलाम पे जाएंगे, और बाबुल सलाम पे आपने सलाम करना है रोजा रसूल पे, और वहां से राइट साइड से निकल के वापस आ जाना है और एग्जिट हो जाना है, ठीक है। रवादा जाने के लिए भी उन्होंने यहीं पे रास्ते बनाए हुए होते हैं। अब उस वक्त वो किस तरह से उसे मैनेज करेंगे, बहरहाल आप जाते हैं, अपना परमिट शो करते हैं, परमिट शो करने के बाद वो आपको मस्जिद नबवी के अंदर ले जाएंगे। मस्जिद नबवी के अंदर समवेयर वो आपको यहाँ कहीं पे उन्होंने इस वेटिंग एरिया बनाया हुआ होता है, या बाबे बिलाल गेट से आपको लेके यहाँ पे कहीं वेटिंग एरिया उन्होंने बनाया हुआ होता है। उस वेटिंग एरिया में आपको बैठा देंगे। जब आपके बैच का टर्न आएगा तो फिर वो आपको रवादा ले जाएंगे, रियाजुल जन्ना बिल्कुल बिसाइड दी रोजा रसूली है, वहां आपको ले जाया जाएगा। इसके अलावा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, वो भी रोजा रसूल के बिल्कुल सामने है। अगर आप रोजा रसूल को फेस कर रहे हैं तो आपके राइट साइड पे पड़ेगा, और अगर उसको अपोजिट फेस कर रहे हैं, अगर आप अपने होटल को फेस कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे पड़ेगा। तो जन्नतुल बकी अगर आप कोई विजिट करना चाहे तो जन्नतुल बकी जा सकते हैं आप। कुछ उसकी टाइमिंग है गेट ओपन करने की। उसका मेन गेट ये है, यहाँ पे रोजा रसूल के बिल्कुल सामने, मेन एक्सेस यहीं से, और मोस्टली ओपन होता है। समटाइम वो क्लोज कर देते हैं ड्यू टू द क्राउड की वजह से, अदरवाइज आप इजीली इसमें जा सकते हैं। इसमें जाने के लिए भी कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब जन्नतुल बकी में जाके आपने कितने अंदर जाना है यहाँ पे डिपेंड करता है। ऐसा जिसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है कि आपने किसी स्पेशल जगह पे जाना है। सब अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, आपको नहीं पता चलेगा कौन सी ग्रेव किसकी है। बहुत सारे मैप्स मौजूद हैं, बहुत सारी मार्किंग मौजूद है, बहुत सारी मखसूस ग्रेव्स हैं। उनके ऊपर कुछ सिक्योरिटी लगी हुई होती है, तो आप समझ जाइए कि ये इंपॉर्टेंट जगह है, इंपॉर्टेंट लोगों की ग्रेव्स हैं, और वो थोड़ी ओल्ड होंगी, यानी उन्होंने फ्रेश नहीं किया हुआ होगा। ओल्ड होंगी, ब्लैक स्टोन्स होंगे, उस पर कुछ सिक्योरिटी होगी, यानी कुछ पुलिस वाले या शूर से बैठे हुए होंगे, तो आप समझ जाए वो इंपॉर्टेंट जगह है। इस सेक्शन में किसी को कोई सवाल? ओके, सवाल है, कैन दे एक्सेस द किस्वा फैक्ट्री? किस्वा फैक्ट्री जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। उसकी वेबसाइट पे जाइए, किस्वा फैक्ट्री पे देखिए क्या प्रोसीजर है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, और मैं कभी भी किस्वा फैक्ट्री नहीं गया। श्योर कि हज के दिनों में वो खुली होती है, नहीं खुली होती है, बहरहाल उसका एक अलग है। आप किस्वा फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ उसका परमिट लीजिए, और बाय अपॉइंटमेंट उससे जाना पड़ता है।
आमिर भाई, ये क्या चीज है किस्वा फैक्ट्री? किस्वा फैक्ट्री वो फैक्ट्री है जहाँ पे गिलाफ काबा बनता है। अच्छा, एक सवाल है कि विल आवर करंट व्हाट्सएप नंबर वर्क टू शेयर लाइव लोकेशन? यस, आपका करंट जो व्हाट्सएप नंबर है सेम ही होगा। जब आप सिम चेंज कर रहे होंगे तो व्हाट्सएप आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू चेंज अ नंबर, तो से नो प्लीज, अदरवाइज आपका व्हाट्सएप नंबर नए नंबर पे स्विच हो जाएगा। जब भी आप कभी भी कहीं पे भी कोई नई सिम डालें तो उस पे आप जब आपसे अगर आपको नंबर चेंज नहीं करना है तो आपने उसे नो का ऑप्शन क्लिक करना है। ओके, व्हाट्सएप लोकेशन भी शेयर करता है, और अगर आपको लोकेशन शेयरिंग का नहीं पता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों को भेज दूंगा। स्पेशली जब आप ग्रुप में जा रहे हैं तो बहुत इजी होता है, आप व्हाट्सएप पे लोकेशन अपनी शेयर कर दीजिए, 8 आवर्स के लिए वैलिड होती है। उस 8 आवर्स के अंदर जो है कोई भी आपको ग्रुप में देख सकता है, और मैसेजेस तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी लोकेशन भी लाइव आ रही होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं अनटिल अनलेस कि आपके पास वाईफाई मौजूद है। आमिर भाई, एक अलग से भी ग्रुप बनाएंगे वहां पे जाके हमारा, या यही ग्रुप हमारा? नहीं, देखें, ये ग्रुप सिर्फ मैंने जो बनाया था माय हुज्जाज का, ये सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था, इसीलिए ये सिर्फ एडमिन एक्सेस ग्रुप है। जब आप वहां जाएंगे आपको एक और ग्रुप मिलेगा जो आपके जैसे पैकेज के डेज है, लेट्स अज्यूम 17 डेज है या 22 डेज है, तो उसका एक अलग ग्रुप होगा। 13 डेज 15 डेज वालों का अलग ग्रुप होगा। ठीक है, आपने उस ग्रुप को फॉलो करना है। फर्दर मैं एजुकेशनल चीजें इस पे भेजता रहूंगा, मैं कुछ और इंफॉर्मेशन जो मैं नेसेसरी समझूंगा मैं इस ग्रुप पे भेजता रहूंगा, लेकिन वो जो ग्रुप होगा आपने स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना है ड्यूरिंग योर हज। वही ग्रुप आपको बताएगा आपकी बसेस मिना जाने के लिए कब आएंगी, वही ग्रुप आपको बताएगा कि आपने कब मिना से अरफा जाना है, और बाकी तमाम चीजें वही ग्रुप बताएगा आपको। ठीक है, आपने उस ग्रुप को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जब हम मक्का पहुंचेंगे, या हो सकता है उससे पहले ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए इंशाल्लाह। किस्वा फैक्ट्री की वेबसाइट के बारे में मैं चेक करके बता दूंगा कि अगर मुझे मिलती है और उसका प्रोसेस मिलता है तो मैं इंशाल्लाह मैं उसे चेक करके बता दूंगा। कोई और सवाल किसी का इस सेक्शन में? व्हाट्सएप के हवाले से आप याद रखिएगा, व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं होगी बैक होम। अगर आपके पास आईफोन मौजूद है, तो फेस टाइम कीजिए, सबसे इजीएस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस है। अदरवाइज बॉटम एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लीजिए, तो उससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं बैक होम, इवन लाइक विद इन द सऊदी अरेबिया एज वेल। व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं काम करेगी। चले नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। कुछ वार्निंग्स। ओके, जब आपको नुस्ख कार्ड फिजिकली मिल जाए तो आपको ऑल द टाइम नुस्ख कार्ड अपने गले में लटका के रखना है। ठीक है, यही आपकी आईडी है, यही आपका परमिट है, यही प्रूफ है कि आप लीगली हज पे आए हैं। अगर आपके पास नुस्ख आईडी नहीं है, आपके पास वीजा मौजूद नहीं है, आपके फोन में डिजिटल नुस्ख आईडी मौजूद नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली सऊदी पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है मां सिवाय इसके कि आपको मक्का से लेके वो ले जाएंगे और वो जद्दा छोड़ देंगे, या हो सकता है वो आपको जद्दा की जेल में भी डाल दें। कुछ हाजियों के साथ पिछले साल ऐसा हुआ है, क्योंकि पिछले साल से वो इस पे बहुत सख्ती कर रहे हैं परमिट पे, इसलिए फिर वो सुनते नहीं है किसी की भी। अव्वल तो उन्हें मोस्टली इंग्लिश नहीं आती है और आपको अरबी नहीं आती है, तो कम्युनिकेशन का बैरियर आ जाता है। जब तक आप उन्हें समझाएंगे आप जद्दा पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो बेहतर है कि अपने पास हर वक्त कोई डॉक्यूमेंट जरूर रखिए। आप कितनी मनी सऊदी अरबिया ले जा सकते हैं? 60,000 रियाल इज द लिमिट। इससे ज्यादा अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करना होगा। एयरपोर्ट पे आपके, जैसे मैंने पहले बताया, कहीं पे भी आप जाएंगे लगेज इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू नॉट थिंक कि आप सऊदी अरबिया जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, दीनी इबादत करने जा रहे हैं, इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत करने जा रहे हैं, तो वहां सब के सब इसी मकसद के लिए जा रहे हैं। फॉरगेट अबाउट दैट, बी केयरफुल। वहां लोग हर पर्पस के लिए, हर मेंटेलिटी के साथ जा रहे होते हैं। सेम ड्रेस होगा, सेम तरह के परमिट्स उनके पास मौजूद होंगे, बट यू कैन नॉट रीड देयर माइंड। तो अपने लगेज की हिफाजत आपने खुद करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत आपने खुद करनी है, अपनी मनी की हिफाजत आपने खुद करनी है। स्पेशली जब आप एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, अपने लगेज अटेंडेंट नहीं छोड़ना है, और जब किसी बेल्ट पे आप डाल रहे हैं तो उस पर भी आपने ख्याल रखना है। किसी को ऐसे नहीं कि आपने लगेज दे दिया और आप वॉशरूम चले गए, तो ये भी नहीं करना है। ओके,
मोस्ट कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं जब हज के दरमियान, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं, वाजे कर दूं, जो जिसपे लॉस्ट हो जाते हैं। वॉशरूम जा रहे हैं, 3-4 लोग मिलके कहीं गए, वॉशरूम नजर आया, किसी एक ने कहा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जब वो वॉशरूम जाते हैं तो अपना आईडी, अपनी फोन वो दूसरों को देके चले जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें इनकन्वीनियंट होता है वॉशरूम में। ऐसा नहीं कीजिएगा, अपना फोन हर वक्त अपने साथ रखिएगा, अपनी आईडी हर वक्त साथ रखिएगा, क्योंकि जब वो आप वॉशरूम से वापस आएंगे तो कोई पता नहीं कि वो शुरता वहां से उन्हें भगा दे, वो कहीं और चले जाए, या पीछे से क्राउड आ जाए, रश आ जाए, और रश की वजह से उन्हें मूव होना पड़ जाए। जी शहजाद भाई, गो अहेड प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अमर भाई, क्या माई हुज्जाज हमें वो कंप्लीट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगी ताकि हम लोग उसको प्रिंट आउट भी कर लें, हार्ड कॉपी भी, और अपने आप को ईमेल भी कर लें या सेव कर लें, जिसमें सब सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वीजा भी होगा, एग्रीमेंट भी होगा शायद, जिसमें जी। मेरा ख्याल है उसमें पूरी पता ना बुकलेट सी होती है। एक आपका हज जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हज हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन की बात कर कहलाती रहा है। हूँ। जी जी, वो जरूर प्रोवाइड होगा, वो आपको मिल जाएगा। वो भी आपको मिल जाएगा, उसमें तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी। जिसमें होटल का भी होता है और सारे होटल्स का भी आ जाएगा, इनके सेफ साइड पे फैमिलीज जी को बंदा प्रिंट हार्ड कॉपी भी दे देता हो, ईमेल भी कर ली, व्हाट्सएप भी कर ली अपने आप जी जी, वो सेव सब आप करने के लिए। वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, उसमें सारी डिटेल मौजूद होगी। इवन उसमें यहाँ तक भी डिटेल मौजूद होगी कि आपको किस ईयर की बस में ट्रैवलिंग कराई जाएगी। हाँ, मैं बिल्कुल पता, लेकिन मैं क्या वो मुझे प्रोवाइड करेंगे ना यकीनन आप जी लोग। जी जी, प्रोवाइड कर दें। जी जी ब्रदर सैयद। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, तो ये कब तक ये डिटेल्स हमें मिल जाएंगी? ये डिटेल्स इन प्रोसेस हैं, इंशाल्लाह, मतलब डिटेल्स मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। इंशाल्लाह इस वीक में ये चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। आमिर भाई, वो इंजेक्शन जिनका मेरे रह गया, वो आपको पता ही है, मैं अपनी मदर ला की बात कर रहा हूँ, ताकि वो उसको भी टेक केयर कर लीजिएगा, ताकि वो लगा लें, हफ्ता तो रह गया। अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर हमारे पास फुल कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जो सिचुएशन हुई थी कोटा सिस्टम की, तो 2-3 ग्रुप मिलके काम कर रहे हैं। तो हम तो रेडी है, लेकिन दो अदर ग्रुप्स हैं वो रेडी नहीं थे। तो जब वो भी रेडी हो जाएंगे तो फिर सबको एक साथ हम वो फॉर्म इशू कर देंगे। आमिर भाई, ये नुसुक कार्ड और जो बाकी चीजें हमें एयरपोर्ट पे मिलेंगी या बाद में आप लोग देंगे? नहीं, ये आपको बाद में मिलेंगे, ये मक्का पहुंचने के बाद मिलेंगे आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नुसुक ऐप डाउनलोड करना और उसमें रजिस्टर करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आमिर भाई, एक चीज ये था कि वो जो मक्का मुअज़्ज़मा है उसमें हरम में जो वाशरूम है वो कहाँ पे, नीचे ही बेस में? आपने कहा है कि हाल ऊपर जाते हैं, तो अगर वाशरूम है तो वो कहाँ पे है? कुछ उसका दिखाया था आपने या मैंने मिस किया? मैं आपको वॉशरूम की भी बता देता हूँ लोकेशंस। हरम के अंदर कोई वॉशरूम है ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत लिमिटेड है, मोस्टली क्लोज होते हैं। तो अगर आप मताफ में हैं और या हरम की हदूद में, मतलब बिल्डिंग में, तो आपको बाहर ही आना पड़ेगा। वॉशरूम्स कहाँ हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको जहां पे भी ये सर्कल नजर आ रहा है ना, इस तरह से, हाँ इस हाँ, तरह से, इनके नीचे वॉशरूम्स है। ठीक है, अच्छा, ये बेसमेंट है, नीचे जाना है। एग्जैक्टली बेसमेंट है। यहाँ पे अगर मैं आपको शो कर सकूं मैप में, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो भी आपको ये सर्कल नजर आ रहे हैं, इनकी बेसमेंट में वॉशरूम मौजूद है। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये चारों तरफ वॉशरूम मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे खैर ये टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं शो नहीं कर सक रहा हूँ। यहाँ पे भी एक जगह है, यहाँ पे भी वॉशरूम बने हुए बहुत सारे। और इसके अलावा क्लॉक टावर के सामने, नॉट सामने, साइड पे, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे ये अम्ब्रेलास आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉशरूम नजर आएंगे, मिलेंगे यहाँ पे। जी, आप कुछ कह रहे थे मसूद भाई? इसका मतलब है कि अगर आप हरम के अंदर हैं तो आमिर भाई, अगर वॉशरूम, फिर तो आप निकल गए, बाहर ही चले गए एक तरह। जी एग्जैक्टली, फिर वापस मुश्किल हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। हाँ। हरम की नई बिल्डिंग में हो सकता है, नई बिल्डिंग जो बनाई है वहां पे वॉशरूम मौजूद होंगे, लेकिन आप इस मताफ वाली जो जगह है ना, यहाँ से आउट मस्ट होंगे। वजू करने की जगह यहाँ पे है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे इस दरमियान में बाबुल अब्दुल अजीज गेट के पास यहाँ पे मौजूद है, ये जो मैं स्क्वायर को बना रहा हूँ। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ढूंढना उस वक्त, तो बेहतर है कि आप प्लान अहेड। आमिर भाई, एक चीज है, मैंने देख रहा था कि वो अगर वजू आपको करना हो तो एक वो स्प्रे बॉटल वाला एक कुछ बता रहे थे,
हमारे कुछ उसमें बता दिए कि ये जायज है या नहीं, हमारे इमाम बताएंगे कि ये कर सकते आप हैं नहीं। जो है शरई सवाल है एक्चुअली, एंड डिफरेंट मसलक का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो बेहतर है कि किसी इस्लामिक स्कॉलर से ये सवाल कीजिए, या अगर आप जब वहाँ पे हो अजीजिया में हो और वहाँ बयान हो तालीम हो तो वहाँ यही लुधियानवी साहब से सवाल कर लीजिएगा, या उनके जो असिस्टेंट होंगे उनसे सवाल कर लीजिएगा। सवाल ये है कि अगर हम ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और यहाँ से चले जाएं और हमें नुस्ख कार्ड मिल जाए तो क्या हमें फिर भी ऐप के अंदर ऐप रखनी होगी या डिलीट कर दें? ओके, आप ऐप हर वक्त रखिए, क्योंकि ऐप आपकी सिर्फ नुस्ख कार्ड आपका सिर्फ एक फिजिकल नुस्ख कार्ड है, बट ऐप जो है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा भी है। लेट सपोज हरम की टाइमिंग, नमाज की टाइमिंग, लेट सपोज आपने रवादा बुक कराना है, लेट सपोज कोई कुरान आपने रिसाइट करना है, या कुरानी रिसाइटेशन को आपने सुनना है, या ट्रांसलेशन आपने उसकी देखनी है, ये तमाम चीजें मौजूद हैं अरबी और मुख्तलिफ जबानों में मौजूद है, सिर्फ एक जबान में नहीं है, मुख्तलिफ जबानों में मौजूद। हाउ डू कुर्बानी और ईद, कुर्बानी जो आप हज पे कुर्बानी करेंगे वो दमे शुक्राना है, वो आपकी ईद उल अधा की कुर्बानी नहीं है। तो अगर आप साहिब हैसियत हैं और ईद उल अधा की कुर्बानी करना चाहते हैं तो आप रेगुलरली जहां ईद उल अधा की कुर्बानी करते हैं वहां कीजिए। अगर आप हरम में करना चाहते हैं तो आप जब आप अपने हज की कुर्बानी जो दमे शुक्राने के पैसे दे रहे हो तो वहां पे एक एक्स्ट्रा कुर्बानी के भी पैसे देते हैं आप वहां पे, इस नियत से कि ये आपकी ईद उल अधा की कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो हज पे हम कुर्बानी करेंगे वो ईद उल अधा की कुर्बानी नहीं है, वो दमे शुक्राना है जो हमने उम्रा किया है और उस उम्रे का दमे शुक्राना हम अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमने हज के सफर के साथ एक फायदा उठाया है उम्रे का भी, तो अल्लाह ने उस फायदे उठाने के लिए हमसे एक दमे शुक्राना लिया है, वो है वो कुर्बानी। ओके, सवाल ये है कि हम जो कुर्बानी करेंगे हज पे उसके पैसे कहाँ देंगे? उसके पैसे हम जब अजीजिया में जमा होंगे इंशाल्लाह, जब अजीजिया में स्टे करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप को आपने फॉलो करना है और उस ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा कि आपने किस साहब को जाके वो पैसे जमा कराने हैं। तो आपने ये वहां पे आप अपने पास रखिएगा एग्जैक्ट अमाउंट, और कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं और वहां पे अगर आप चेंज ले सकते हैं तो आप चेंज जरूर लीजिएगा, ताकि आपको कुर्बानी के पैसे देने में आसानी हो, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप टैक्सी लेंगे तो उसके लिए आपको पैसे देने के लिए आसानी हो, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने पास ज्यादा से ज्यादा चेंज रखिए। एक और सवाल है, क्या हमें स्लीपिंग बैग मिलेंगे और हमें अपने स्लीपिंग बैग खरीदने हैं? ओके, सवाल, स्लीपिंग बैग लास्ट 2 ईयर से स्लीपिंग बैग जरूर मिल रहे हैं, ये मौलिम की तरफ से होता है, यानी कि जिस कंपनी के थ्रू हम बुक कराते हैं मिना और अराफा की फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करती है, तो लास्ट 2 ईयर से तो ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस साल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी? देखिए, एक बैग प्रोवाइड किया जाता है अरफा का, एज आई एक्सप्लेन अर्लियर एज वेल, कि उस बैग के अंदर एक एहराम होगा मर्दों के लिए और एक अबाया होगा खवातीन के लिए, एक पानी की बोतल होगी, एक स्प्रे बोतल होगी, एक स्टोन रखने का बैग होगा और तस्बीह होगी और एक टोपी होगी। ये सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, आपके हज ऑपरेटर्स की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो मौलिम की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है उसमें एक स्लीपिंग बैग होता है और उसमें स्टोन्स भी होते हैं, उसके अंदर एक सफरी जाए नमाज भी मौजूद होती है और 2-4 चीजें और भी होती हैं। ठीक है, तो जो मौलिम की तरफ से चीजें प्रोवाइड की जाती हैं मैं उसकी फिलहाल श्योरिटी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो सऊदी मौलिम का हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर लास्ट 2 ईयर से वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस साल भी वो प्रोवाइड करेंगे, तो बहरहाल, लेकिन मैं उसकी कोई गारंटी आपको फिलहाल नहीं दे सकता। तो सवाल ये है कि अगर हम उम्रे पे गए हैं और रियाजुल जन्नत जा चुके हैं किसी पहले महीने में, तो क्या हम दोबारा रियाजुल जन्नत पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते? ओके, जब आप उम्रे पे गए थे तो आपने, डिपेंड करता है कौन सा पासपोर्ट यूज किया था। मोस्ट प्रोबेबली आप उम्रे पे गए होंगे, कैनेडियन पासपोर्ट यूज किया होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपने जो रजिस्ट्रेशन कराई होगी वो कैनेडियन पासपोर्ट पे कराई होगी। अब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जा रहे हैं, आप पहली दफा पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज कर रहे हैं। इसी तरह से जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे नुस्ख पे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के थ्रू करेंगे। याद रखिए, अगर आपके पास पहले से एप्लीकेशन मौजूद है
तो बराए करम उस एप्लीकेशन किसी और पासपोर्ट पे, तो बराए करम उस एप्लीकेशन को डिलीट कीजिए, या न्यू आईडी से, न्यू ईमेल आईडी से आप अपनी नई नुसुक ऐप बनाइए और पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो यूज करते हुए आप वो यूज कीजिए और उससे नई रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि आपकी तमाम डिटेल्स जो आपकी उस पासपोर्ट के ऊपर मौजूद है उसके थ्रू नुसुक ऐप उसे एंटरटेन करें। आमिर भाई, ये जो नुसुक ऐप में बाकी जो नुसुक कार्ड और बाकी सारी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होगी, ये कब अपलोड होगी? जब हम मक्का पहुंच जाएंगे यानी सऊदी, या उससे पहले अपलोड हो जाएगी? ये देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ और अपना वीजा नंबर डालते हैं, जी, तो नुसुक ऐप जो है ना ऑलरेडी आपको आपका हज परमिट नंबर दे देती है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप नहीं भी डालते हैं लेकिन वो बैकग्राउंड से उठा लेती है। तो मैंने तो किया हुआ है, लेकिन ऐप तो डाउनलोड कर ली, लेकिन उसने इंफॉर्मेशन पुल इन नहीं की हुई। नहीं, अगर आप उस पे जाए नुसुक कार्ड पे, अपनी ऐप पे जाइए, नुसुक कार्ड पे जाइए। जी, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, मैं आपको शो करता हूँ, शायद मैं शो कर सकूं। या कोई कि मैं अगर कोई इशू है तो हम बाद में इसको ऑफलाइन भी डिस्कस कर लेंगे आमिर भाई, को मसला ठीक है, नहीं। आप अपने ठीक एजेंडा है, पे रहें। कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 सेकंड लगेंगे। जब आप नुसुक कार्ड पे क्लिक करेंगे और जब आप इस सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे हज परमिट नंबर ऑलरेडी आ चुका होगा। यहाँ पे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। ओके, यही आपने जो पासपोर्ट यूज किया है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज किया है? जी, ओके, कोशिश कीजिए। और ओके, वीजा नंबर आपने सही डाला है? जो वीजा एप्लीकेशन नंबर था वो वही डाला है। किसी के लिए भी नहीं आ रहा है या सिर्फ आपके लिए नहीं आ रहा है? नहीं, मेरा और वाइफ का तो नहीं आ रहा, आई एम प्रीटी श्योर। ओके, चलें, उसे मैं सेपरेट ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफलाइन कर लेते हैं, आज शाम में कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ग्रुप में जो टाइम टेबल बताया जाएगा, लोकेशन पॉइंट बताया जाएगा जी, ग्रुप में आपको हर चीज बताई जाएगी, आपको टाइम भी बताया जाएगा, लोकेशन भी बताई जाएगी। जो ग्रुप को आप फॉलो करेंगे तो आपको उसमें हर एक्टिविटी के बारे में बताया जाएगा। मुझे ये पूछना कि अगर ये मेन ग्रुप भी एज इट इज ही रहने दिया जाए ताकि हम डायरेक्ट आप तक रीच हो सकें, और जो हमारा अदर ऑल्टरनेट होगा, लेट्स सी 22 डेज वाला, तो हम उसके साथ भी रहें, ताकि हमें कोई ऐसी, वो तो न्यू पीपल होंगे, एवरीवन डिफरेंट होगा, हमें तो नहीं पता उसका, और हम जी। वैसे आफ्टर 2 डेज हम लीव हो रहे हैं, तो हमारे पास तो इस तरह के कोई कनेक्शन ही होगा आपके साथ या ग्रुप को, तो कैन यू लाइक आप रहने दें इसी तरह, एक कलेक्टिव एक इंडिविजुअल जैसे दूसरे वाला 22 डेज वाला? जी, ये ग्रुप ऐसे एज रहेगा, ये ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है। वो जो दूसरा नया ग्रुप है वो सिर्फ वहां के लिए यूज होगा जो एक्टिविटी आप वहां करेंगे। ये ग्रुप एज इज होगा, इस पे ऐसे ही इंफॉर्मेशन आते रहेंगी, जैसे जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी वैसे वैसे मैं इंफॉर्मेशन आपको आगे देता रहूंगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इस वक्त अगर मैं आपको कोई फॉर्म फिल करने के लिए भेज रहा हूँ, कोई चीज उसके लिए भेज रहा हूँ, फॉर्म के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अराइवल डिपार्चर स्केड्यूल के लिए, या मदीना से मक्का से मदीना जाने के लिए, 1 पर्सन फ्रॉम अ फैमिली जो है उसको मस्ट फिल करें और उसमें बताएं कि कितने लोग आपकी फैमिली में मौजूद हैं, ताकि मैं उस हिसाब से जो अदर देन पैकेज जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है और चीजें हैं उसको स्केड्यूल कर सकूं। अगर आप उस फॉर्म को इग्नोर कर देंगे तो यू आर नॉट अंडर माय काउंट, राइट? और फिर मैं उसी हिसाब से व्हीकल अरेंज करवाऊंगा, उसी हिसाब से मैं मतलब चीजें मूव करूंगा, और फिर लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि ये फिर आपको वो फैसिलिटी ना मिले, पूल में आने की फैसिलिटी ना मिले, फिर आपको किसी प्राइवेट गाड़ी के थ्रू आना पड़े और उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा। आप बता रहे हैं कि आप कुछ चीजें भेजेंगे, तो आप इसी ग्रुप में हमें भेज रहे हैं वो फॉर्म? जी, वो सब आपको माई हुज्जाज में मिलेगा। जो चीज मैं मैनेज कर रहा हूँ वो तमाम की तमाम चीजें आपको माई हुज्जाज के ग्रुप में ही मिलेंगी। जो ये हज का ग्रुप बनाया हुआ है जिस पे अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है उसी के ऊपर मिलेगी। और ये जो नेक्स्ट 2 वीक्स है, ये नेक्स्ट 10 डेज है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी, बहुत फास्टली आपको रिएक्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, जो अभी टाइम जो है ना थोड़ा सा कम रहेगा। वी आर ऑलमोस्ट देयर। हमारी तो नेक्स्ट वीक ही है, नेक्स्ट संडे आमिर भाई। हमारे जैसे कोई 17 का, 20 डेज का, 22 डेज है, वो जो हम नॉर्थ अमेरिका वाले उनका एक ही ग्रुप होगा, या इसमें हमारे साथ 17 के पाकिस्तान से भी होंगे या दूसरे इस किस्म के? मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रूम शेयर होगा वो उन्हीं लोगों के साथ होगा जो यहाँ से जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली, अनटिल अनलेस के
कोई सेटिंग नहीं बनती है, मतलब एक आधा कोई शख्स जो है वो किसी और कंट्री से आ रहा है तो वो ऐड हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी मसूद भाई जी। सवाल ये है कि कितने डॉलर्स, कितने सऊदी रियाल्स एस्टिमेटेडली कैश लेके जाया जाए पर पर्सन। इज डिपेंड अपॉन यू कि आपने वहाँ कितना खर्चा करना है। इसकी कोई 60,000 सऊदी रियाल इज द लिमिट, वो मैं आपको बता चुका हूँ, और आपने कितना उसको स्पेंड करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम। ज़ियारत पे लेके जाएंगे या नहीं, वो हम खुद अरेंज करना पड़ेगा मक्का और मदीना में? अच्छा, अभी ज़ियारत के लिए मक्का और मदीना दोनों के लिए जो है वो बसेस होती हैं, शटल्स आती हैं, शटल्स पे जाते हैं। तो मुख्तलिफ टाइमिंग होती हैं, जो टाइम आपको सूट करे उस टाइम के हिसाब से आपने उन ग्रुप के साथ जाना है। वैक्सीन रिकॉर्ड के लिए आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो येलो कार्ड आपको मिला है या डॉक्टर ने आपको अपने लेटर हेड पे लिख के दिया है या फार्मासिस्ट ने लेटर हेड पे लिख के दिया है, वो रख लीजिए। फिर मैं बता दूं, वैक्सीनेशन अनटिल अनलेस कोई मांगे नहीं, अपने पास से नहीं देनी। अमूमन पिछले सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, कोई नहीं चेक करता है। आपकी अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए तो अपने पास वो रिकॉर्ड रखिए, जस्ट इन केस अगर कोई मांग ले। अमन भाई, हमारे इस पैकेज में इंश्योरेंस इंक्लूड है? देख, इंश्योरेंस, किस इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं आप? मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूं फर्स्ट। जी, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी इंक्लूडेड है। आपका जो पैकेज है उसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस मौजूद है। खुदा ना खास्ता अगर आप किसी वजह से बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, यू आर ऑल कवर्ड। और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बाय करनी हो इन केस तो वो कर सकते हैं? प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन आपको खुद पर्सनली बाय करनी पड़ेगी, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ है वो कवर्ड है, हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। आप समझिएगा आप कनाडा में। मैं समझ गया। आमिर भाई, एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम मदीना मुनव्वरा से के बाद दोबारा आके भी उम्रा करना हो तो क्या हमें फिर जो तवाफ है विदा है वो पहले वो भी करना पड़ेगा या वो बाद में ही करना पड़ेगा उम्रे के आखिर में, जब बिल्कुल हम वहां से निकल रहे हैं? देखिए, तवाफुल विदा जो है वो हज पे होता है वैसे तो, और वैसे भी तवाफुल विदा के जो वो है मतलब सुन्नत है वो ये कि जब भी आप हरम छोड़ रहे होते हैं तो आप 7 चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं और फिर हरम छोड़ देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दे यहाँ आने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि उम्रा कर लें। उम्रा करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा से हरम में आप 7 चक्कर लगाइए, तवाफ कीजिए। उम्रे के बाद आप जो भी तवाफ करेंगे वो आपका तवाफुल विदा हो जाएगा, ठीक है। बेशक आप उसके बाद 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, या बार बार जाके फिर नफली तवाफ करते रहे, इट डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा। तो उसका कोई खास टाइम नहीं होता है, कोई खास नहीं होता। अगर किसी वजह से नहीं भी हो सकता है, उम्रे की बात बता रहा हूँ, तो इट्स ओके, लेकिन हज पे आपको करना लाजिम होता है। अच्छा, हज का कर लें और बाद में उम्रा करते रहें, दैट्स फाइन। जी, उम्रा बेसिकली आप एक ही करेंगे ना, जब बार बार तो नहीं जाके उम्रा। फर्ज करें कि अगर आप जो है ना मदीना गए, वापस भी हमने वहाँ पे 1-2 दिन रहना है, वापस जी आप वापस आए, उम्रा करेंगे। आप आएंगे इसी सूरत हाल में कि आप ihram की हालत में होंगे, उम्रा करेंगे, फिर आपके पास जितने दिन आप रह रहे हैं जाके नफली तवाफ करें और फिर आप नफली तवाफ करें, फिर अपने घर आ जाए। मैंने ये पूछना था, जो हम जाते हुए उम्रा करेंगे, जाते ही वो हज उम्रा हो जाएगा? अच्छा, आप जब जाएंगे तो आप उम्रा करेंगे, और देखिए जब आप देखिए 2 चीजें, आपके पास 2 टास्क हैं इस सफर पे जाने के लिए। आपने टास्क नंबर 1 आपने उम्रा करना है, टास्क नंबर 2 आपने हज करना है। तो पहली दफा जब आप जा रहे हैं तो आप उम्रे की नियत करके जाएंगे और उम्रा परफॉर्म करेंगे, यानी एहराम पहनेंगे, नियत उम्रे की करेंगे, उम्रा करेंगे मक्का पहुंच के। उम्रा करने के बाद आप एहराम उतार देंगे, तो आपका एक टास्क खत्म हो गया। अब टास्क नंबर 2 हज है। 8 ज़िलहज को आपने दोबारा से एहराम पहनना है, हज परफॉर्म करना है। हज हो गया, एहराम उतर गया, आपके दोनों टास्क खत्म हो गए। तो आप उम्रे को अलग रखिए और हज को अलग रखिए। जो आपने अभी कहा था ना, हज उम्रा करना है, हज उम्रा आपको लाजमी करना, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, वो तवाफुल विदा है जो वो पूछ रहे थे मसूद भाई, वो तवाफुल विदा पूछ रहे थे। यानी हज में आपने तवाफुल विदा करना होता है, तो वो एंड में करना है आपने। या वो तवाफुल विदा जब तवाफ करते हैं वो उसमें सही नहीं करते ना? उसमें सही नहीं करते। शुक्रिया। माई हुजाज, मैं सबके लिए तरह से पूछ रहा हूँ कि माई हुजाज ग्रुप हमें कोई बुकलेट देगा हज की, जैसे किताबें होती है छोटी छोटी, कि हर बंदा अपनी अरेंज करके लाए? बुकलेट आपको मिलेगी आपके बैग के साथ। जब आपको बैग मिलेंगे तो उसमें आपके पास बुकलेट्स भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह।
हाँ, तो अगर कोई फर्ज करे भूल गया तो कम से कम उसके पास ऑप्शन है कि उसको मिल जाएगी। नहीं आमिर भाई ऐसी नहीं होती जिसमें लिखा हो कि मीना में फर्स्ट डे पेज पे लिखा हो ये करना है, तो नेक्स्ट डे फिर पेज नंबर 2 में ये होता कि हमें ये पता हो कि आज के दिन हमने ये सब चीजें कर लेनी है, ये दुआएं और ये स्टेप्स हैं। नेक्स्ट डे तो मैंने देखा था एक जज बता रहे थे कि उनको एक इस किस्म की गले में होती है, वो फिर पेज चेंज करते रहो तो उससे पता रहता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बुक मिलेगी, उसमें तमाम डिटेल मौजूद होती हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें मौजूद है। मायुजात की वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो ये सारी डिटेल मौजूद है। मैं अभी आगे इस वीक में 2 PDF भेजूंगा, उसमें कुछ सुनना है, उसके अलावा जो है दुआएं हैं वो आप देखिएगा। मैं एक और PDF आपको भेजूंगा, उसमें सिर्फ दुआएं होंगी। और मैं एक वीडियो शेयर करूंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर बताया जाएगा कि कौन से दिन कितने फर्ज हैं, कितने मनासिक हैं, आपने कौन से दिन क्या करना है। तो अपने पास वो डिजिटली रखिएगा, व्हाट्सएप में ही होंगी वो, लिंक भी व्हाट्सएप में मौजूद होंगे। तो जहाँ भी इंटरनेट मौजूद होगा वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आमिर भाई वहाँ पे कौन सी सिम लेनी चाहिए? STC कोशिश कीजिए, STC का प्लान ले लीजिए। STC अच्छा है, सऊदी टेलीकम्युनिकेशन। और ये होटल जाके लेनी है आमिर भाई, हमने एयरपोर्ट से नहीं लेनी है ना सिम, आपने ये कहा? जी, एयरपोर्ट से ना लीजिए। एयरपोर्ट पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कीजिए, मनी एक्सचेंज भी नहीं कीजिए, कोई सिम भी नहीं लीजिए। क्योंकि नंबर 1 हो सकता है एयरपोर्ट पे सारी चीजें बंद हो, क्योंकि उन्होंने क्राउड कंट्रोल की वजह से सब चीजें बंद की हुई हो। नंबर 2, यू डोंट नो, बहुत सारी दफा वो ट्रिक करते हैं, मार्केटियर्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आप ये मत समझिएगा कि आप हज पे जा रहे हैं, सब लोग जो है वहाँ पे बिल्कुल ही ऑनेस्टली बैठे हुए हैं, ऑनेस्टली सब काम करने के लिए बैठे हुए। नहीं, मार्केटियर मार्केटिंग का काम कर रहे होंगे और दूसरे लोग अपना काम कर रहे होंगे। तो आपने ये सारी चीजें कोशिश करें, कुछ पैसे एक्सचेंज करके लेके जाइए यहाँ से, जो जरूरत के हैं, जो आपको फौरन उस दिन या नेक्स्ट डे आपको यूज करना है, जब तक आप मजीद पैसे एक्सचेंज नहीं कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो है सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसे, उतना एक्सचेंज करा के लेके जाइए। जैसे पहले दिन जाके आपको कुछ खाना खरीदना है, अगर आप पहले जा रहे हैं, या टैक्सी करके आपने अगर आप पहले जा रहे हैं तो अजीजिया जाएंगे टैक्सी करके, या फिर आपको जाना है अगर हरम, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, तो वो रियाल कन्वर्ट आप ऑलरेडी करा लीजिए। बाकी जो चीजें हैं बाकी आप वहां जाके बाद में भी करा सकते हैं। जी गो अहेड इरमा। अस्सलाम वालेकुम। आमिर जो दुआओं के हिसाब से पूछ रहे थे भाई, दुआओं में जो है वो आप जो तीसरा और चौथा कलमा है ना वो बाय हार्ट करना है, क्योंकि बुक्स में बहुत एक्स्ट्रा डिटेल लिखी होती है तो वो आप अटैच नहीं होते हैं। तो जो तीसरा और चौथा कलमा है ना उसकी बहुत ज़्यादा है, तो वो बाय हार्ट अगर करने याद तो वो आप पढ़ें। बुक्स ले लेके जो लोग पढ़ रहे होते हैं ना, वो आप अल्लाह से आपका कनेक्शन नहीं बहुत ज़्यादा बनता है। तो अगर आपको ये 2 कलमे याद होंगे तो मतलब आपका यही है कि आप यही पढ़ें। बाय हार्ट आप चीजें याद करिए और कोशिश कीजिए ट्रांसलेशन के साथ याद कीजिए, ताकि आपको पता चले आप क्या रीड कर रहे हैं और क्या मान रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के हवाले से जो सवाल है, जी क्रेडिट कार्ड हर जगह यूज होता है, इवन ATM से आप पैसे भी निकाल सकते हैं, बट हर ट्रांजैक्शन के कुछ चार्जेस होते हैं। इफ यू वांट टू बेयर अप द चार्जेस, दैट्स अप टू यू। आमिर भाई जो आप सिम कार्ड का कह रहे हैं STC जो है वो उसमें डिफरेंट पैकेज होगा, तो आपको कुछ है अंदाजा कि हमें क्या कौन सा पैकेज लेना है या किस किस्म का होगा और उसका क्या अमाउंट होगा, ताकि हमें पता हो? जी डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। नंबर 1, उतने दिन के हिसाब से आप पैकेज ले लें। मेरे ख्याल 15 डेज का पैकेज होता है, 30 डेज का पैकेज होता है। तो अच्छा, आपके केस में तो 30 डेज का पैकेज लेना पड़ेगा। लेकिन जो लोग 12 दिन के लिए जा रहे हैं वो 15 डेज का पैकेज ले लेंगे। जो 15 डेज के लिए जा रहे हैं वो 15 डेज का पैकेज ले लेंगे। कुछ लोग जो है उनके फोन्स ऑलरेडी रोमिंग पे होते हैं, तो उनकी सर्विस प्रोवाइडर रोमिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली यूएस के जो हाजी हैं रोमिंग पे होते हैं। इसी तरह कनाडा की कुछ कंपनीज हैं जो रोमिंग पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं। तो डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं। जी गो अहेड महक। मैंने पूछना था होटल कौन सा होगा क्लॉक टावर में? जी मूवमेंट पिक। ई सिम के हवाले से एक सवाल है, हाउ अबाउट ई सिम? ई सिम आप जरूर लेके जा सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने ई सिम यूज की थी डेटा के लिए। जब मैं जद्दा एयरपोर्ट से मक्का जा रहा था तो ई सिम काम कर रही थी बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट। ई सिम में कोई इशू नहीं है। सिर्फ ई सिम का सिर्फ एक इशू होता है कि आप उससे कॉल नहीं कर सकते, जैसे लैंडलाइन पे कॉल करते हैं या सेल फोन पे कॉल करते हैं। ई सिम से सिर्फ आप डेटा यूज कर सकते हैं। तो अगर आप को किसी और को कॉल नहीं करनी सऊदी नंबर पे या कैनेडियन नंबर पे, तो आप ई सिम यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप डेटा यूज कर सकते हैं। देयर इज नो मोर क्वेश्चन, लेट्स गो टू द
एक चीज शेयर करनी थी, रिसेंटली मुझे भी आज ही नजर आई और फिर उसके बाद मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ कि जिस जर्नी पे हम जा रहे हैं और इतने सारे हमने सवाल जवाब भी किए, छोटी छोटी सी बातें भी हमने मतलब पूछी और उसका ख्याल कर रहे हैं। हम दुनिया की उस एरा में मौजूद हैं जहां हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, ई सिम्स की बात करते हैं, होटल्स की बात करते हैं, मकतब और कैटेगरीज की बात करते हैं। तो मैंने कहा चले ये चीज भी शेयर कर दूं कि जिस मकसद के लिए जा रहे हैं हम उस मकसद को हमें नहीं भूलना। अल्लाह ने फजल अता फरमाया है फैसिलिटीज लेने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह फजल लीजिए अल्लाह का, उसकी नेमतों को यूज कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। शुक्र करने का तरीका ही यही होता है कि वो नेमत आप इस्तेमाल करें और उसका शुक्र अदा करें। जैसे कोई प्यासा है तो अगर उससे पूछे कि जी कैसे हो, वो कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर वो पानी पिएगा और उसकी सलाहियत उसको आएगी, उसकी खुशी उसे मिलेगी और उसे जब वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा तो उस अल्हम्दुलिल्लाह में और जो प्यासे की अल्हम्दुलिल्लाह है ना, जमीन आसमान का फर्क। तो अल्लाह की नेमत लीजिए और उस पे उसका शुक्र अदा कीजिए। लेकिन ये बात याद रखिए, जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं, जिस इबादत के लिए जा रहे हैं, सबके लिए इतनी आसान नहीं होती है। ये पिक्चर मैंने ब्लर कर दी है। 2019 में कि पाकिस्तानी साहब हज पे गए थे, 43 इयर्स उन्होंने पैसे जमा किए और हज पे गए और कबूलियत ऐसी थी कि हज पे उनका इंतकाल हो गया। ये भी याद रखिएगा कि किस मकसद के लिए जा रहे हैं, किस रब की इबादत के लिए जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा हक अदा करने जा रहे हैं। और हमारे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सालों लगा देते हैं इस इबादत पे जाने के लिए। उनकी मेहनत, उनकी मुशक्कत हम अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। और आज के ही दौर में हम उन 25,000 लोगों में से हैं पाकिस्तान से जिनको कोटा मिला है, वीजा मिला है। 67,000 तकरीबन लोग जो हैं पेड, पैसे देने के बाद टिकट्स कराने के बाद भी नहीं जा सकते। तो अल्लाह ने अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जब ये अपॉर्चुनिटी दी है तो किसी खास वजह से दी होगी, कोई खास करम होगा हम पे, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। कुछ और सवाल आए हैं, उन सवालों को ले लेते हैं। हाँ, ओके। एक सवाल है, डू हैव टू डू विल बिफोर हज। ओके, देखिए इस्लामी तालीमात के हिसाब से हमें विल हर वक्त बनानी, मतलब जब हम एडल्ट हो गए, बालिग हो गए और हमारे डिपेंडेंट्स आ गए जो हम पे डिपेंड करते हैं और हमारे पास कुछ जायदाद है, कुछ एसेट्स हैं जो हमें या तो पहले डिवाइड करने हैं या हमारे आफ्टर द डेथ वो डिवाइड होने हैं। तो विल जरूर, ये कोई विल हज का पार्ट नहीं है। इस्लामी तालीमात के हिसाब से रब कहता है, अल्लाह कहता है अपनी विल बना के रखो। तो आप चाहें तो अगर अभी तक हज विल नहीं बनाई है तो हज पे जाने से पहले आप विल बना लें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। गो अहेड सिस्टर रोज। जी, मुझे क्वेश्चन करना था कि वहाँ पे 2 टाइप्स के म्यूजियम है आई थिंक इन मदीना। वो जो सारे उन्होंने रखे हुए थे ना, सब चीज़ें जो चेंज की होती हैं, जैसे डोर चेंज किया काबा का या किस्वा चेंज किया, एवरीथिंग। तो वो उन्होंने वो सारी उनकी हिस्टोरिकल लाइक आइटम्स पड़े होते हैं। क्या वहाँ विजिट आपकी तरफ से कर सकते हैं या हम खुद से उसका अरेंज करें? नहीं, वो आपको प्राइवेटली जाना पड़ेगा। But we don't know how to go there. So No, can you can take a taxi and you can go, right? No, you just give us correct information in a group. I will take हम खुद से बुक करा लेंगे या अगर अब हमारे पास टाइम हुआ तो। अगर कुछ लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेट्स अज्यूम कि अगर बहुत सारे जो लोग इंटरेस्टेड हैं और आप उनको कोऑर्डिनेट कर सकती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं व्हीकल अरेंज करा दूंगा। व्हीकल आपको लेके चली जाएगी और वही व्हीकल वापस लेकर आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में अरेंज करा दूंगा, तो वो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। आमिर भाई, एक तो मस्जिद नबवी के अंदर ही है, ये मैं देख रहा था। वो कह रहे थे कि इधर से डोर ऊपर जाए तो वो म्यूजियम है जहाँ पे ये सब चीजें मस्जिद नबी के अंदर बहुत लिमिटेड चीजें हैं। जिस म्यूजियम की ये बात कर रहे हैं वो डिफरेंट म्यूजियम्स हैं और काफी डिस्टेंस पे हैं मस्जिद नबवी से। और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो लेट्स फिनिश दिस सेशन टुडे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। या अल्लाह, हमें हज पे बुला ले और हमें हज का तरीका सिखा दे।
और इसकी खैर बरकत हम पे और हमारे अहल वयाल पे अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। और जो लोग भी हज पे जा रहे हैं उनको साथ खैरियत और साथ खैरियत के लेके आ और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा। हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सहूलतें अता फरमा और अगर कोई तकलीफ हमारे रास्ते में है तो उस पर सब्र करने की तौफीक अता फरमा और शैतान के रास्ते से बचा। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك